Page number 12 of your math magic book, and I am reading these two questions of मीनकर बैंक. मीनकर क्या होते हैं बेटा? मीन हिंदी का शब्द है और मीन मीन्स मछली, दैट इज फिश. और मीनकर हु कैचेज द फिशेज आर कॉल्ड मीनकर. ओके, सो मीनकर का बैंक, वो कैसे अपनी मनी सेव करते हैं बाय कैचिंग फिशेज. सो आई एम रीडिंग, everybody read along with me, page number 12, Women's Meenkar Bank. The meeting of Meenkar Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisher women have made their own bank. उन्होंने अपना खुद का बैंक बनाया है. Each one saves ₹25. How many fisher women are there? 25 fisher women are there. And they have made their own bank, each one of them saving ₹25 every month. Okay, puts in the bank to collect it. How much money does the group collect each month? Now we have to find the total money the group is collecting each month. So how do we do? First of all, we'll write total fisher women in the bank is equal to 20, which is given in the question. Yes, money saved by one fisher woman, money saved by, now money collected by the group think ₹25 multiplied by 20. So we will directly write 2 or 25 twos are 50. So ₹500 they have collected. तो आप you can also multiply it like this. Second question is, first of all I hope you understood this one कि total fishermen थे, फिशर वुमेन थी 20 और वो each one is saving ₹25. हर एक 25 सेव कर रहा था. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन 1 month. ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years. ये हमारा 1 month का आ गया. इट इज ग्रुप कलेक्टेड द मनी फॉर 1 month. नाउ वी हैव टू फाइंड इट फॉर 10 years. पहले हमारे पास 1 month का है, फर्स्ट वी मेक इट फॉर 1 year. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, टू फाइंड द मनी कलेक्टेड इन 1 year, क्योंकि 1 month 500 और 12 months मेक 1 year. तो हम लिख सकते हैं मनी कलेक्टेड in 1 month is equal to ₹500. Yes, then we'll write money collected in 1 year will be equal to ₹500 multiplied by 12. So what would it be? 0, 0, 12 fives are 60. 6,000 in 1 year. Now we will write money collected in 10 years will be equal to, we'll multiply this 1 year money multiply by 10. So we'll write ₹6,000 multiply by 10. So we'll write ₹60,000 will be the money collected in 10 years. So I hope you understood
पहले हमने 1 मंथ का निकाला कि ग्रुप ने 1 मंथ में कितना परचेज की, कितनी कलेक्शन की। 1 मंथ के बाद हमने 1 ईयर का निकाला, बिकॉज इन 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ईयर का अपने पास आ गया, 1 ईयर का अपने पास है तो हम 10 का तो ईजिली निकाल सकते हैं। वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद 10 ईयर्स टू गेट द मनी कलेक्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, so in this question I am reading again, everybody read with me. Gracie needs money to buy a net. Jhansi and her sister wants to buy a log boat. Page number 12 पर हूँ मैं. So they take a loan from their bank. They will return it with interest because they have to pay extra money if they are taking loan from anybody. So they are taking loan from bank. Now first A part is Gracie took a loan of rupees 4,000. How much money she has taken from the bank is rupees 4,000. She paid back rupees 345 every month for 1 year. Means for 1 साल के लिए उसने कितने रुपीज़ पर मंथ पे किए हैं, रुपीज़ 345 she has paid every month for 1 year. So how much money did she pay back to the bank? कितनी मनी उसने बैंक को वापस कर दी, ये हमें पता करना है। So सबसे पहले हमें क्या चाहिए, we are having the rupees she is paying back to bank in 1 month. तो अगर हमारे पास 1 मंथ का है तो हम 1 साल का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, we know it. So how do we write? सबसे पहले हमें पता है amount, we'll write amount of loan. कितना उसने अमाउंट लिया, रुपीज़ 4,000 का उसने लोन लिया, राइट। देन मनी पेड बैक in 1 month. In 1 month, how much money she is paying back? Rupees 345 she is paying back every month. You can see it is here. So in 1 month she is paying rupees 345. So time we know is 1 year. Time हमारे पास कितना है बेटा, 1 साल है, 1 year. So 1 year, how many months are there? 12 months are there, isn't it? We can write it 12 months. So money paid back in 1 year will be equal to rupees 12 multiplied by 345. Means in 1 month if she is paying 345 to bank, so in 1 year means 12 months में कितनी पे करेगी, we will multiply. यूनिटरी मेथड में क्या कहते हैं, if we are coming from smaller unit to bigger unit we will multiply, क्योंकि increase हो रहा है, so we will multiply it. So you can write rupees, I am multiplying here beta, 345 multiplied with 12, 5 2s are 10, 8 and 9, 3 2s are 6, multiply, और 5 4 and 3, so कितना हुआ, 1 and 4. So this will be the rupees she is paying back to the bank. 4,140 rupees she is paying back. Now my dear kids, first of all listen to me, everybody listen to me. What is the meaning? She has taken loan of rupees 4,000. she is taken 4,000 rupees का उसने लोन लिया था, और उसने पे कितना किया, how much she has paid back? She has paid back 4,140. she has paid extra ना, जो हमने एक्स्ट्रा उससे लिया, बैंक ने जो एक्स्ट्रा लिया, what is that? वो क्या है? Tell in the chat. What is that? जो मनी वो एक्स्ट्रा पे कर रही है बैंक को, वो क्या है? You can send me in the chat.
एक्स्ट्रा मनी इसने जो 140 रुपीज जो एक्स्ट्रा दे रही है वो व्हाट इज दैट? चैट में मुझे मैसेज करो। यस गरिमा मेहता, वेरी गुड, इट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसने पे किया है 140, दैट इज अभिमन्यु, वेरी गुड, समायरा, वेरी गुड। सो वी विल राइट इट। देखो बेटा आपकी बुक में कुछ सिर्फ यही पूछा है कि उसने बैंक में कितने पैसे वापस किए। ओके अब फिर भी आप लिखोगे कि इंटरेस्ट कितना बना उसका। इट इज नॉट आस्क्ड इन योर नोटबुक, इन योर क्वेश्चन, इट इज नॉट आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, बट वी विल राइट कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, आई एम राइटिंग हेयर, आफ्टर दैट यू कैन राइट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट उसने कितना पे किया? ₹4140 माइनस 4000, है ना? तभी तो हमें पता चला कि 140 रुपीज एक्स्ट्रा उसने पे किए हैं। सो दिस 140 रुपीज इज इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा कि इंटरेस्ट बताओ, बट वी विल राइट। ओके, हमें पता रहेगा कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो बेटा, इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव रिटन, Jhansi and her sister took a loan of ₹21,000. They have taken loan of ₹21,000 to buy a log boat. उन्हें एक log boat परचेज करनी है तो उन्होंने लोन ले लिया कितने का? 21,000 रुपीज़ का। ठीक है, दे पेड बैक, उन्होंने वापस अब देने हैं पैसे। उन्होंने कितने पैसे वापस किए? दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520. 21,000 rupees they have taken as a loan, and how much money they have paid back? They have paid back 23,520. तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, लोन लिया है तो ऑब्वियसली उन्हें एक्स्ट्रा पे तो करना पड़ेगा। ओके, सो हमें अब ये बताना है हाउ मच डिड दे पे बैक इन एवरी मंथ, क्योंकि एक साल में उन्होंने पे किया है 23,520, तो हमें पता करना है कि उन्होंने एवरी मंथ कितना पे किया। बिल्कुल, अभी मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा था कि अगर 60 रुपीज़ मैं पूरे साल में किसी से लेती हूँ तो मैं एवरी मंथ कितना पे कर रही हूँ, एवरी मंथ। तो हमने क्या किया, 60 को मंथ से डिवाइड कर दिया, 60 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हर महीने में 5 रुपये दे रही हूँ, तब जाके मैंने उसे 60 रुपीज़ पे किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम वही होगा, हमें पूरे साल का उन्होंने जो पे किया है वो हमारे पास है, हमें एवरी मंथ का निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट अमाउंट ऑफ लोन। लोन का क्या अमाउंट था? ₹21,000 was the amount of the loan, isn't it? 21,000 was the amount, and money paid back in 1 year, एक साल में कितनी मनी पे की उसने? So we'll write money paid back in 1 year. 1 year में उसने कितनी मनी पे की है? 23,520। तो हम यही लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन में बेटा, द सेम वी आर राइटिंग। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड मनी पेड बैक इन एवरी मंथ, इन 1 मंथ। तो हम क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, मनी पेड बैक इन 1 मंथ। अगर 12 मंथ्स का ये है तो 1 मंथ का कैसे? बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड। सो विल राइट 23,520 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हम ये डिवाइड करेंगे, हेयर आई एम डिवाइडिंग इट, 23,520, 12 1s are 12। ओके, ठीक है, साथ साथ डिवाइड कर रहे हैं, 1 1 देन 5। अब क्या लेंगे बताओ, टेल, बताओ,
12 9s are 108. Then we will write 7. Then we'll take 2 down. 12 6s are 72. Okay. Then 0 0 and this 0 will come down. So 12 zeros are 0. So कितने मनी वो एवरी मंथ पे कर रही है? ₹1960 शी इज पेइंग एवरी मंथ. ओके, सो दिस इज द अमाउंट वो हर महीने इतना पे कर रही है. ओके, तो मुझे ये बताओ, अगर ये टोटल अमाउंट उसने पे किया और ये उसका लोन था, तो इंटरेस्ट उसका कितना था? इंटरेस्ट पेड कितना था? ये उसने टोटल पे किया एंड दिस वाज शी हैज टेकन लोन. 21,000 का 21,000 का उसने लोन लिया और 23,520 उसने पे किए. एक्स्ट्रा मनी शी हैज पेड, दैट एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो हम लिखेंगे ₹23,520 minus 21,000. Okay, so we'll get how much money as interest? 2,520. ठीक है, आप यहाँ पे माइनस करके भी दिखा सकते हो. 23,520 में से हम 21,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 2 5 and 2. So 2,520 will be as interest she has paid to bank. Okay, so this is the solution of part B. I hope you understood this. कैसे हमने 1 month का फाइंड किया. ओके